Good morning students. Today once again I have brought a new video for you of class 10th economics chapter first, that is development. The chapter name is development. When you heard the word development, what comes to your mind? So in this video we will discuss about the meaning of the development, means we will discuss about the definition of development, and besides we will also talk about the Human Development Index, and the next thing that we will discuss the classification of countries. You know how many types of classifications of countries are there: developing countries, developed countries, and underdeveloped countries. And besides we will also discuss about the basis for the classification, means what are the basis, what are the main criteria to classify the countries between developed countries and developing countries and underdeveloped countries. All these things will be discussed in detail. Let's discuss about the meaning of development. Generally development means growth. Development means growth या विकास, you can say in Hindi विकास या तरक्की. Development means for different people. Development means different for different people. डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का होता है. आपने पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल, इफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए डैम for the public, so definitely that is a development. But another side, if we see that is not a development for other people who are living especially for into the forest areas, outer regions. यानी अगर गवर्नमेंट डैम बनाने जा रही है तो फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज गुड थिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. यू नो what are the main purpose for the building of dams? To generate electricity, for irrigational purpose, for tourism. Okay, but at the same time what happens, the place where the dam is going to be constructed, so definitely the population, the people of that area will be replaced या displaced from that particular place. वहाँ से उन लोगों को हटाया जाएगा, वहाँ से displace किया जाएगा, उन्हें rehabilitate किया जाएगा. तो जाहिर सी बात है they will not feel that this is a development. और दूसरी चीज, at the construction site there is a डेंजर ऑफ सबमर्जेंस ऑफ लैंड. जमीन के धंसने का खतरा होता है, सब्सिडेंस का डाउट हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल फॉर ऑल. और दूसरी चीज ये होती है कि डेवलपमेंट को लोग बहुत अलग अलग तरीके से लेते हैं. मेनी टाइम्स वी थिंक दैट व्हाट इज डेवलपमेंट, बट इन एक्चुअल सेंस दैट इज नॉट डेवलपमेंट फॉर अदर्स. इक्वलिटी की अगर बात करें, कुछ मेनी गर्ल्स प्रीफर टू लिव इक्वल टू द बॉयज, बट according to themselves this is a development, but according to the society, according to the norms, this is not a development. Okay, so this was the general definition of development. Development means different for different people. Now let's talk about the human development. You know what is human development? Human development means manav vikas. What are the main indicators? By seeing that we can identify that this human is completely developed. It means if we are able to fulfill our basic needs, if we are living our happy life by which we can get all the materialistic desires, we can fulfill all the materialistic desires like housing, car and some basic facilities, it means that is human development. यानी वो हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, लाइफ स्टैंडर्ड में सुधार हो और हमारी इनकम में इंक्रीमेंट हो. इसी तरीके से हमारी परचेसिंग पावर हो, हमारी अच्छी क्लॉथिंग हो, अच्छे बिल्डिंग हो, अच्छा मकान हो. इट मीन्स वी कैन से दैट इज ए ह्यूमन डेवलपमेंट. Okay, so what are the human development index? Education means literacy rate and good houses, good cars, luxurious lives and basic facilities. These are the indicators of development. Now let's talk about the classification of countries. You know, generally the countries have been classified into three groups: developed countries, developing countries and underdeveloped countries. What are the basis? What are the criteria to classify these countries? यानी उन देशों को क्लासीफाई करने के क्राइटेरिया क्या क्या है जिनकी बुनियाद पे उनको क्लासीफाई किया गया है तीन हिस्सों में, यानी लो इनकम कंट्रीज, मिडिल अपर मिडिल इनकम कंट्रीज या लोअर इनकम कंट्रीज. इनके पीछे क्राइटेरियाज क्या है? तो जनरली बेसिस जो होते हैं, दो बेसिस पाए जाते हैं, एक वर्ल्ड बैंक, दूसरा यूएनडीपी. पहला जो है वर्ल्ड बैंक, according to the World Bank, the countries where the per capita income is very high,
that country will be considered as the developed countries. यानी per capita income is the only basis for the classification of countries. कौन सा देश developed countries होगा, कौन सा developing country होगा, कौन सा underdeveloped country होगा, this is decided just because of the per capita income. यानी per capita income से decide होता है कौन सा देश कितना developed countries है. पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम होता क्या है, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं. पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड मींस टोटल नेशनल वेल्थ ऑफ द कंट्री विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. यानी जब देश का पूरा टोटल नेट वैल्यू, नेशनल वेल्थ यानी देश की पूरी कैपिटल को पूरी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो एन एवरेज इनकम इज कमिंग आउट, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. Okay, so this is the criteria, this is the general basis for the world classification of countries of World Bank. Another thing that is UNDP. Okay, you know what is UNDP? UNDP means United Nations Development Program. This is an organization which publish a report that is called HDR. HDR means Human Development Report that is published every year to classify the countries. यानी देशों को क्लासीफाई करने में ये एक रिपोर्ट होती है, पब्लिश होती है हर साल. इसमें बताया जाता है कि विच कंट्रीज आर कंसिडर्ड डेवलप्ड कंट्रीज एंड विच कंट्रीज आर कंसिडर्ड डेवलपिंग कंट्रीज. हमने पिछले में पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक डिसाइड्स द पर कैपिटा इनकम ओनली, बट अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का बेस नहीं माना जाता, बल्कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कंसीडर की जाती हैं. पहली बात, इसके अंदर पर कैपिटा इनकम के साथ साथ पर कैपिटा इनकम तो होता ही है. दूसरी चीज लिटरेसी रेट, तीसरी चीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. इसी तरीके से लाइफ स्टेटस और इसी तरीके से सैनिटेशन और इसी तरीके से बेसिक फैसिलिटीज. यानी दीज आर द क्राइटेरियाज, दीज आर द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज. कैसे पर कैपिटा इनकम के साथ साथ अगर किसी भी देश की, किसी स्टेट की लिटरेसी रेट हाई है और उसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी एक साल के अंदर न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड होते हैं वो कितने दिनों तक, कितने सालों तक जिंदा रहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ दैट कंट्री. यानी ये बच्चे की जो लाइफ लेंथ होती है that is fixed by the that is decided by the health facilities of that country. यानी अगर किसी देश का हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंप्रूवमेंट होगा, वहां के बच्चे ज्यादा दिनों तक ज्यादा जिंदा रह सकते हैं. बिकॉज एट द इनिशियल स्टेज देयर इज नीड ऑफ माल न्यूट्रिशंस, उनके अंदर न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है, उनकी माओ मदर्स के लिए न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है. इफ द कंट्री इज अनेबल टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द न्यूली बॉर्न बेबी, दैट then definitely their life expectancy will be improved. The next thing, that is life status of the citizen of that country is also an indicator of development. यानी उस देश के लोग, वहाँ के सिटीजन का लाइफ स्टेटस क्या है, what are the purchasing power, उनका clothing, either they are able to fulfill their basic needs, either they are able to fulfill their materialistic desires. If we can see all these things, then we can say that they are completely developed. अगली चीज सैनिटेशन प्रॉब्लम ना हो, बेसिक फैसिलिटीज हो, टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटीज हो और सीवेज सिस्टम सही हो. सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी. Now we will compare the countries, we will compare the states of India on various basis. जैसे हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ओनली द पर कैपिटा इनकम इज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. बट अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी,
United Nations Development Program, besides per capita income, some more provisions, some more basis for the classification of countries they are considered. So in this chapter we are going to compare the states of India. जैसे आपने सुना होगा, many times you might have heard that Kerala is only the state which has with highest literacy rate. केरल में ज्यादातर लिटरेसी रेट होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी गुड होता है और पर कैपिटा इनकम इज आल्सो गुड. लेकिन अगर यहाँ बात करें कि कंपैरिजन ऑफ केरला, अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बात करें तो केरल और पंजाब में दोनों में से कौन से स्टेट की पर कैपिटा इनकम बेटर है, तो पंजाब की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ केरला. You know why? Because the maximum people of Punjab are involved in many other activities apart from agricultural activities, and the scientific tools are used in agriculture practices, and besides many more of them have industrialists. So Punjab has more capita income. इस तरीके से देखा जाए तो पंजाब ज्यादा डेवलप हो गया, लेकिन यूएनडीपी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो केरल ज्यादा डेवलप माना जाता है, क्योंकि केरल के अंदर सिर्फ हमने पर कैपिटा इनकम को कंसीडर नहीं किया. अगर उसको करते हैं तो पंजाब ज्यादा डेवलप है, लेकिन केरल के अंदर वो सारी बेसिक फैसिलिटीज बेटर कंडीशन में है जिसे हमने अभी बात की थी, जैसे लिटरेसी रेट 93 पॉइंट समथिंग है. इसी तरीके से सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं है उतनी ज्यादा. इसी तरीके से वहां का लाइफ स्टेटस अच्छा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन अच्छी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटर है, लोगों की लाइफ ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ पंजाब. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दैट इज आल्सो गुड बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं. इसी तरीके से वहां ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर बेटर देन पंजाब. सो इन दिस वे वी कैन से दैट केरल इज मोर डेवलप्ड देन पंजाब. अब बात करें केरल, श्रीलंका और इंडिया और पाकिस्तान की, इन तीन कंट्रीज की अगर कंपेयर करें तो श्रीलंका इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया एंड पाकिस्तान. अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बात करें तब भी श्रीलंका इज मोर डेवलप्ड. अगर इसी तरीके से बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, इकोनॉमिक स्टेटस और लाइफ स्टेटस, लाइफ लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन तमाम चीजों पे बात करें तो श्रीलंका इज बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान. लेकिन इन दोनों कंट्रीज में बात करें तो इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान. ओके अगर लिटरेसी रेट की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज में, तो इंडिया इज डूइंग बेटर इन देन पाकिस्तान. ओके सो दीज आर द जनरल कंपैरिजन बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन द कंट्रीज ऑफ इंडिया, बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Now we will talk about those countries as we have discussed that classification of countries on the basis of per capita income. So this is given here कि countries have been classified into 4 groups: high income groups, upper middle income, and lower middle income, low income. So we will talk about those countries and about their incomes, per capita incomes, which are given here. हाई इनकम कंट्रीज की बात करें कि उनकी पर कैपिटा इनकम जो एनुअली होती है, जिनकी रिपोर्ट हर जुलाई में हर साल आती है 1 जुलाई को, तो हाई अपर इनकम में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं जिसके बारे में आपको सर्च करना है. उनकी इनकम के बारे में बात करें, 12,375 यूएस डॉलर अगर किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम है तो दैट कंट्री इज कंसिडर्ड हाई इनकम कंट्रीज. उसका एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, Canada, and some other American countries and European countries where the maximum income is of the per capita income is found there. Okay, the second thing that is upper middle incomes, यानी ये upper middle income countries कौन कौन से हैं, उनकी इनकम कितनी है, तो 3,996 से लेकर 12,375 डॉलर यूएस डॉलर अगर पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की है तो वो कंट्री क्या कहलाएगा, अपर मिडिल इनकम के अंडर में आएगा. उसका एग्जांपल है जॉर्जिया, एक यूरोपियन कंट्री है. इसके बाद बात करेंगे लोअर मिडिल इनकम में, जिसमें इंडिया आता है. लोअर मिडिल इनकम में ही इंडिया आता है, जिसकी इनकम कितनी होती है, पर कैपिटा इनकम 1026 से लेकर 3,996 यूएस डॉलर पर एनुअली पर कैपिटा इनकम है, जिसमें इंडिया, जिम्बाब्वे एंड मेनी अदर कंट्रीज आर लाइंग. ओके सो दीज आर द जनरल डिटेल्स अबाउट द कंट्रीज अलॉन्ग विथ द पर कैपिटा इनकम्स ऑफ द कंट्रीज. अब बात करेंगे लो इनकम कंट्रीज. लो इनकम कंट्रीज में बिलो 1026 यूएस डॉलर, जिसका एग्जांपल है घाना. ये रहा क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। अब बात करेंगे इन देशों में बेसिक फैसिलिटीज की क्या कंडीशंस होती हैं। अगर हाई इनकम कंट्रीज की बात करें तो वहां का लाइफ स्टेटस लोगों का दैट इज बेटर, far better than low income and lower middle incomes. Their literacy rate is also good. Their life status, their basic medical facilities, transport facilities and good environment and government policies are also in favor of the people. So in this we can say this country is considered more developed countries. इसी तरीके से बात करें अपर मिडिल इनकम्स की, उसके कंपेरेटिवली थोड़ा लो होता है। यहाँ भी वो सारी फैसिलिटीज होती हैं जिसकी हमने बात की थी, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो, या फिर पर कैपिटा इनकम की बात हो, या बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज हो, दैट इज आल्सो गुड, बेटर कंडीशन देन ऑल अदर फॉर्म ऑफ सिस्टम्स। लोअर मिडिल इनकम में सब कुछ एवरेज होता है, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज होती हैं बट एट एवरेज लेवल। और पर कैपिटा इनकम आपने देख ही लिया। इसमें इंडिया की कंडीशन के बारे में आप बात कर लें, यहाँ लाइफ स्टेटस क्या है, लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए आपने देखा होगा देयर आर वेरियस स्कीम्स आर रन बाय द गवर्नमेंट, जिसे आपने पीडीएस सिस्टम पढ़ा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किए जाते हैं, जैसे लोग टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशंस टू द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के लोअर सेक्शंस के बच्चों और उनके लोगों को न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, दे आर अनेबल टू मैनेज देयर फूडिंग्स, मैनेज देयर मील्स फॉर एटलीस्ट 2 times. So in this way the government is able to provide them foodings for 2 times by the scheme of PDS system. ओके इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडिया में मनरेगा शुरू किया गया। 2005 में मनरेगा स्कीम के थ्रू द लेबर्स आर प्रोवाइडेड वर्क फॉर 100 days एंड इन रिवेंज ऑफ दैट वर्क, उनके इस काम के बदले में दे आर गिवन वेजेस बाय द गवर्नमेंट। 100 days का वर्क होता है, उनका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उसके हिसाब से उनको इनकम हो जाती है। और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स की, हम लोग लोअर मिडिल इनकम में आते हैं तो हमारे यहाँ की कंडीशन क्या है, तो उसके हिसाब से आप कंपेयर खुद करिएगा कि वेरी लो इनकम कंट्रीज में क्या हालत होगी। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि लोअर इनकम कंट्रीज में क्या कंडीशन होती है ये सारे बेसिक फैसिलिटीज की। Now we will talk about the sustainable development. You know what is sustainable development? Sustainable development किसे कहते हैं? The development of any area while using the resources, while developing the areas, while developing the particular areas to consider the next generation, अगली generations के आने वाले, जैसे at the time of using of any resources we must consider, we must concern over the next generation of our human lives। हम कोई भी रिसोर्स जैसे प्लांट या कोई भी रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीजें जब यूज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ यूजिंग ऑफ दीज मिनरल्स एंड रिसोर्सेज व्हेन वी थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट इज अ डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी तरीके से हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, सो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि आवर इन्वायरमेंट शुड नॉट बी डिग्रेडेड, यानी हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए। हमारा डेवलपमेंट अच्छी चीज है, दैट इज द नीड ऑफ द टाइम, ये वक्त की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, लेकिन हमें ऐसा ना हो कि जैसे हमने प्लांट को काट दिया, प्लांट और ट्रीज को कट करने के बाद हमें उसे दोबारा से लगाना चाहिए। अगर हम अपने आने वाली नस्लों के बारे में, आने वाली जनरेशंस के बारे में सोचते हैं एट द टाइम ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज, that is called sustainable development. It means in simple words you can say the proper use and proper management of resources is called sustainable development. Okay, दूसरी चीज क्या बात करेंगे, जीडीपी, जो विच इज रिलेटेड टू योर टॉपिक। डेवलपमेंट की बात की है तो जाहिर सी बात है दीज आर द एडिशनल थिंग्स विच वी मस्ट नो अबाउट जीडीपी एंड जीएनपी एंड पीपीआई। ये क्या होता है जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? द टोटल नेट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। यानी अपने देश की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो नेट वैल्यू होती है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। और जो करेंट जीडीपी ऑफ इंडिया की अगर बात करें, दैट इज 2.5%। Current GDP of India is 2.5%. On the basis of GDP, we also classify, we also guess the countries, either that is developed countries या developing country. Generally developed countries की GDP ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं लो इनकम क्लासेस, लो इनकम कंट्रीज की तरफ आते हैं, तो their GDP is going to be slowed down. तो and this GDP is variable time to time. ये जो GDP होती है ये वेरिएबल होती है, चेंजेबल होती है, it changes time to time. It depends on the situation. I hope अगर अगली GDP का जो रिपोर्ट आएगी इससे भी कम हो सकता है because of this lockdown period. So this was the GDP. Okay, let me revise it once again. What is GDP? Gross domestic product, the total net value of all the goods and services produced within the territory of the country is called GDP. The next thing, that is GNP. GNP means gross national product. You know what is gross national product? GDP plus all the goods and services products produced abroad. It means out of the country, means in the factories of India, in the industries of India, in the industries established by Indian companies, their net value will be added to the GDP. यानी हमारे जीडीपी में ऐड करेंगे उन तमाम फैक्ट्रियों की इनकम को, उन तमाम इंडस्ट्रीज की, कंपनीज की इनकम को, चाहे वो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी या इंडिया की दूसरे देशों के अंदर, उनकी भी नेट वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो वो हमारा होगा जीएनपी। क्योंकि जो हमारी कंपनियां बाहर के अंदर है, जैसे रिलायंस है और बहुत सारी कंपनियां बाहर विदेशों में काम कर रही हैं, विदेशों में उनके प्लॉट्स लगे हुए हैं, उनके इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है दैट इज अ वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। वो रिसोर्स हमारा है, वो हमारा इनकम है, तो दैट विल बी एडेड टू द इनकम ऑफ आवर कंट्री, तो उसे हम जीएनपी कहते हैं। यानी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज चाहे किसी भी देश में हो, जीडीपी में तो अपने टेरिटरी के अंदर था, लेकिन जीएनपी में किसी भी पार्ट में दुनिया के हो, because that is the company of our country, so that the income of that country will be added to the GDP of India. So GNP means all the goods and net value of goods and services produced in any part of the world will be added to the GDP, that is called GNP. PPI क्या होता है? Per person income, that is I have already told you before sometimes. You know what is per person income या per capita income? Both are same. Per capita income is calculated you know how? The total national wealth, total national income will be divided by the total population of the country. इस तरीके से हम एवरेज इनकम जो आती है उसे हम पीपीआई कहते हैं, पर पर्सन इनकम कहते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। आप आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon to get the latest notification of new videos. Thank you very much.